if you just look at CJP talking about a hunger strike, you wouldn't even fucking know she was on a hunger strike. Like they were fucking sidelined so badly that Deep K when he went on his fucking hunger strike, he didn't even take their fucking names. He only took Wangchuk's name. She's wrong on that. The reason is not pride. If Isa is the one, as she has said, that managed the entire protest, if Isa is the one that led the protest, managed everything in the background, why the fuck they were not allowed to be on stage? बाद कहते हैं खाना नहीं खाएंगे अगर मुझे खिलौना नहीं दिलाओगे, साइकिल नहीं दिलाओगे। तो ऐसा क्या था, कैसे हमारा एक शो मूड में है और यहाँ बोल कह सकते हैं कि Jesus fucking Christ. आंदोलन जीवी गैंग की एक मेंबर भी है, फ्रेशर हैं जनाब। ऐसे कैसे हमारा एक शो है और हम उसमें बहुत सीरियस बातें भी। So he's talking about just introducing Neha, like, oh, she's quote unquote Andolan Jeevi, like a protester, an activist, and all of that shit. He's just talking to her like करते that. हैं, थोड़ा लाइट बातें भी करते हैं। अब एक बात बताइए, आप 23 दिन तक हंगर स्ट्राइक पे थी, नीट के पेपर। She was like on 23 days of hunger strike against NEET. अब जो है कई सारे लोग कहते हैं कि भाई लोग घर में नाराज़ होते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं खाना नहीं खाएंगे अगर मुझे खिलौना नहीं दिलाओगे, साइकिल नहीं दिलाओगे। तो ऐसा क्या था, हंगर स्ट्राइक पे बैठ के भाई हमको। So he's basically saying like, oh, but like even children do it, like they won't eat food. So let's see. तो चाहिए इस्तीफा मांग लिया। अब घर वाले लोग तो घर वाले लोग होते हैं। मोदी जी अगर घर वालों जैसा सलूक हमारे साथ करते तो 20 तारीख को इतना मारपीट नहीं होता। Well, okay, now she's basically saying is like if Modi ji was like acting like a family, like a parent or like a adult figure in the household, he wouldn't have beaten us up on the 20th. Well, I mean, I don't know. She grew up in a very good family, I guess. खैर, पर खाने के साथ ऐसी बदला हमने कभी नहीं निकाला है। ये पहली बार है। सब कुछ हो चुका था, काला झंडा दिखाया जा। He was abusive Indian. Yeah, I know exactly. That's the point. Like, okay. Like, I hope this is not a LARP. I hope this is not a liberal LARP. I really hope this is not a liberal. See, I have not watched this. I generally don't go out of my way to watch Quint. जा चुके थे, न जाने कितने चार्जशीट्स हैं, तिहार जा चुके थे, तो एक ये बच रहा था, इसको भी कर लिया। ये हंगर स्ट्राइक खुद से प्लान था, अपनी जिद थी या? He's asking like, was the hunger strike the entire plan? Was it just came out of nowhere or something? ऐसा उन्होंने कहा कि अरे तुमको बैठना है, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पर जिम्मेदारी है। नहीं, ये जिद तो सोनम वांगचुक की थी मुझे लगता है, और उनके साथ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, यंग लोग। So basically, Sonam Wangchuk was the one who insisted everyone to sit on the hunger strike. Sonam Wangchuk did that. The RSS cuck. लोग भी बैठे, उन्हीं का मूवमेंट है, वो लोग भी भूखे रहें, ये एक था। और बाकी Yeah, they need to stop glazing Sonam Wangchuk. This is why I say like the left doesn't win shit. कि मेरी जिद तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं बैठूं। आमीन थे जो मेरे साथ 23 दिन तक बैठे, वो चाह रहे थे, उनका वॉलंटियर करना था कि हम बैठेंगे। मैंने वॉलंटियर नहीं किया था, ये प्रपोज हुआ था और मीटिंग में पास हुआ, तो फिर She's basically saying that no, she was forced into the hunger strike because Sonam Wangchuk wanted the hunger strike, and they had a meeting like no, we have to do the hunger strike. Like literally, I'm sorry, like. If you just look at CJP talking about a hunger strike, you wouldn't even fucking know she was on a hunger strike. Like they were fucking sidelined so badly that Deep K when he went on his fucking hunger strike, he didn't even take their fucking names. He only took Wangchuk's name. हम बैठे थे। हंगर स्ट्राइक में होता क्या है, हम लोग तो रोज़ा रखते हैं, बहुत लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भूखे रहना पड़ता है एक सर्टेन टाइम के लिए। लेकिन हंगर स्ट्राइक में बहुत लंबा चला आता है। होता क्या एग्जैक्टली, क्या फील करते हैं, सबसे मुश्किल क्या होता है? आई थिंक हमारे लिए सबसे मुश्किल ये था कि हम एक पब्लिक प्लेस पे हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, जहाँ पे दिन के आई थिंक 10 नहीं तो 12 घंटा माइक चलता था, और उस माइक से न जाने दुष्यंत कुमार को हर रोज़ 3 बार तो पढ़ी देते थे लोग कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी। इतना पसंद तो मुझे हो, लेकिन अब इतना ज़्यादा सुन लिया और इतने तकलीफ़ के क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से वो कनेक्ट हो चुका है। She's just talking about how she had to hear the phrases way too much because they kept yapping about that, and she's just tired of it. Okay. अब लगता है कि That's not important, I guess. भूख for this. हड़ताल
मानसिक रूप से बहुत टायरिंग थी हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सराउंडेड थे। मतलब अगर हमें प्रिक किया जा रहा है ब्लड शुगर लेने के लिए तो वो भी 10 लोग बैठ करके देख रहे हैं, सबको रीडिंग देखना है। यहाँ से खून 3-3 वाइल हर ऑल्टरनेट डे लिया जाता था, वो सबको देखना है। हम वेइंग मशीन पे चढ़ते थे कि कितना वज़न कम हुआ तो सब ऐसे रुक जाते थे और आसपास ऐसे गोला बना लेते थे कि कितना वज़न कम हुआ है। तो अपने बॉडी का एहसास बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। और मुझे लगता है कि हमारा बॉडी, हमारा सोने का समय, क्योंकि हम सोते भी वहीं बिस्तर पे थे, तो एवरीथिंग बिकेम वेरी पब्लिक। सब कुछ बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हो गया। मैंने ईसीजी करवाया 3 बार जंतर मंतर पे बैठ करके। मतलब ईसीजी में वो आपके कपड़े खोल करके वो प्लग इन करते हैं, वो भी जंतर मंतर पे हो गया। मतलब अद्भुत दिन थे। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग कह रहे हैं जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो एक वीडियो आप लोगों की आई, आप लोग डांस कर रहे हैं और चल छैया छैया, काफ़ी लोग उसमें हाथ कटिंग की, और फिर तो वो जो है उसमें बार बार कहा जा रहा है यार ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं। एक पूरा बहस चल रहा है सोशल मीडिया पे कि देखो ये लोग तो डांस कर रहे हैं। Yeah, okay. I'm just gonna switch to the actual content about them talking about if they were sidelined. It's like this is just random bullshit talk. ये सही बात है कि अभी मूव रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे लोग जेल में हैं। तो किस तरह से आप देखते हो? नहीं, ये सही बच्चे मरे थे, बहस चल रहा है सोशल मीडिया पे कि देखो ये लोग तो डांस कर रहे हैं, इनको मतलब नहीं है, इतने बच्चे मरे थे। रिप्रेजेंटेटिव्स बंगाल में भी उन स्टूडेंट्स की सहायता कर रहे हैं। ये सही बात है कि अभी मूवमेंट अधूरा है, लेकिन इस मूवमेंट Now peeps are protesting for resignation of which at Jantar Mantar. Yeah, I wish. Yeah, sure. We will see. ISA is doing it. It's not like a CJP movement. Let me be very clear. But also, they're doing it because AAP couldn't take over the initial CJP protest. If the CJP shows up, it is for AAP. The second thing here is that, yes, she is correct. A lot of people are in jail. FIRs have not been removed. FIRs have not been removed. The Gunda bill thing has not been removed. They should be protesting against that as well. But, well, I mean, CJP is never going to. ISA is already protesting. में जितना खून जला है हमारा, जितनी मेहनत, आंसू, न जाने क्या क्या लगा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई सामान्य बात नहीं है। Okay, now she's saying like, oh, technically our blood has boiled or burnt, which is the Indian way of, no, not Indian, sorry, which is the Hindi way of saying that they have worked really hard and Dharmendra Pradhan's resignation is not an ordinary thing. Now, while we do say that it is not because of the CJP protest itself that Dharmendra Pradhan resigned, there was a expose, there was a whistleblower shit on Bhaskar English that kind of suggested it wasn't just Dharmendra Pradhan's CJP protest, but also Congress sitting in front of the Prime Minister's residence demanding it. Because you cannot really harass a LOP. और जब आपके सामने जो ताकतें हैं वो इतनी ज़ोरदार, ज़िद्दी, घमंडी ताकतें हों और आप उन ताकतों को झुका दें, तो मुझे नहीं लगता है कि आधा 1 घंटा नाच लेने से कुछ होता है। ये तो बिल्कुल करना चाहिए, स्पेशली जब आपका खुश रहना रजीम को नागवार गुजरे, तो आप और खुश रहिए। आपको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा हो गया, पार्लियामेंट में आने पे धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनको न जाने क्या क्या पहनाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। Yeah, Dharmendra Pradhan was seen as a victor here, that he did it for the people, that he resigned. Also replacement, yeah, I mean, Prahlad Joshi is a fucktard. तो अपने अना पे जो चोट लगी है उसको कवर अप करने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन आपकी अना पे जो चोट है उसको तो हम छैया छैया से भी, झकझोर दुनिया से भी, सब पे नाच करके दर्ज करवाएंगे कि नहीं तुम तो हारे हो। Yeah, they were cheering for him, they garlanded him, they did all of that sort where this person is taken as like a god. The reason is not pride. The reason is not pride. Don't get me wrong, she is wrong on that. The reason is not pride. The reason for this is that Dharmendra Pradhan can just go back to Odisha and take over the functioning of Odisha. He's an Odisha strong man. They're trying to still keep him in the fucking fold.
और तुम्हारे लिए हार कोई छोटी बात नहीं है, हमें मालूम है। खून का घूंट पिया है तुमने, और इस खून के घूंट पीने, मतलब हम इतने सालों से पी रहे हैं खून का घूंट, एक बार तुम भी पियो और हम भी मनाएं, क्या दिक्कत है? अब एक बात बताइए कि जैसे हंगर स्ट्राइक पर आप लोग भी थे और सोनम वांगचुक भी बैठे थे, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, क्योंकि हम लोगों ने कवर किया, तो जो सेंटर स्टेज था उसमें सोनम वांगचुक थे और उस सेंटर स्टेज पे सौरभ दास और अभिजीत दीपिके, आशुतोष, इन लोगों की टीम और ये लोग थे। आप लोगों का एक अलग एरिया में आप लोग वो कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें थी? So he's basically saying like, oh, you were different. What was the issue that they're taking कि over? जिसकी वजह से आप लोग अलग थे, या कोई मतलब पहले से सेट था कि हाँ हम अलग रहेंगे, या साथ बैठने के लिए कभी कोई बात हुई थी? पहले तो ये डिसाइड ही नहीं हुआ था कि स्टूडेंट्स लोग भी बैठेंगे। सोनम वांगचुक के साथ बातचीत हुई होगी सीजेपी स्पोक्स पर्सन्स की, तो एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने हमें बताया कि वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमने उस मीटिंग में भी कहा कि यंग लोगों का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स भी बैठे, लेकिन उसमें फिर वो और खिंच गया था वो मीटिंग। उसके बाद एक और मीटिंग होनी थी, लेकिन तब तक फिर वो दिन आ गया था जिस दिन से सोनम वांगचुक बैठते भूख हड़ताल पे। तो हम लोगों ने अपना So they were having meetings about this, like whether or not should we stay on the hunger strike. एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग किया और हम 6 लोगों ने डिसाइड किया कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब वो सीजेपी की तरफ से बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे सोनम जी, हम आयसा के एक्टिविस्ट थे जो बैठे थे, और उसमें शायद कुछ लॉजिस्टिकल मामला भी था, इन्फेक्शंस, और एक उनको आदत थी एक तरह से बैठने की। तो हमने कहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम आयसा के स्टॉल पे बैठ जाएंगे, आयसा के टेंट पे प्रोटेस्ट पे बैठ। So they were not allowed, basically. Basically, it means sideline. Like, this is the nice way of saying, like, no, they didn't sideline us. We just decided, like, no, we'll just sit on our own. It's called being sidelined, guys. जाएंगे, बैठना भूख हड़ताल पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि दोनों में ना मतलब फर्क See, whether or not, whether उसको गलत वर्ड ही कहते हैं, लाइमलाइट। whether or not you were on the whether you're protesting or not, hold on, this is better. Yeah, better. Jesus Christ, yeah, perfect. What am I doing? Fuck, yeah. Like, whether or not this all is a propaganda game, right? At the end of the day, this is a propaganda game. So basically, they were like, oh, the propaganda game has failed because they won't let us on the stage. ठीक है, वो पूरा फोकस जो था वो वहाँ था, उस सेंटर स्टेज पे था, लेकिन आप लोग भी प्रोटेस्ट पे थे। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि वो एक नाइंसाफ़ी टाइप है कि आप लोगों को वो सेंटर स्टेज नहीं मिला? He's saying that is it unfortunate or is it not fair that you didn't get the center stage? Because again, ISA made up most of the working public of the CJP. क्योंकि लिए मैंने देखा है कि जब सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया था, उसके बाद आप लोग वापस स्टेज पर आए थे और फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आप लोग स्टेज से हट गए, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। Yeah, so basically after this happened, ISA came on stage for like a screaming match against the government and they cordially left. Let's see how this happens, because again, we all fucking know they were sidelined to shit. वो हुआ क्या था वहाँ पे? अब वही है, प्रोटेस्ट साइट्स बहुत कन्फ्यूजन का भी साइट होता है, और देखिए मतलब इम्पॉर्टेंट बात वो है, क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं वो कंसर्न से ही पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम चाहते थे आप भी बैठे हैं स्टेज पे, वो लोग ये चाहते हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो यार लेफ्ट से एसोसिएट नहीं करना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा ये। Like, okay, for one, she's like, oh, because everyone is asking for concern, that's why they were asking. And now he's trying to say like not many people wanted to associate with the CJP with the left, which is true. ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा भी है तो। खैर, The fuck does she mean? Okay, he's basically saying there is no reason, like why should we be concerned if the protest should not be associated with the fucking left? Okay, listen, this is giving me a headache. ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हो या स्टेज पे संभालना हो, सब तो लेफ्ट नहीं किया था, तो इस और कितना दूरी बना के आप क्या कर लेंगे? सब तो लेफ्ट नहीं किया Okay, उधर। listen, everything has been done by the left. Everything has been done by the left. Just the left doesn't get the center stage here. No, Sonam Wangchuk, the RSS Chutia, gets the center stage here. सीजेपी वाले कहेंगे अरे भाई हमने किया नहीं, मतलब लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सीजेपी अपने साथ में ही। No, CJP hasn't done shit, by the way. CJP hasn't done shit. Why are leftists so self-sabotaging? That's the $1 million question here. किया तो
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है, पता है हम एक लोग सवाल और है इस पे कि सौरभ दास और आशुतोष मिलने जाते थे जेपी नड्डा से, भाई बैठ रही थी नेहा 23 दिन से, अमीन बैठ रहे हैं 23 दिन से। So he's saying that Das and Ranka go to meet Nadda while Neha and Amin are sitting for 23 days. मनीष बैठ रहे हैं, ये सारे लोग बैठे हुए और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वो नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, 2 लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा तो लगता है ना कि यार इतना प्रोटेस्ट में जो जिसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, मैनेज करना भी एक बड़ा वैल्यू रखता है। See, the people, he's saying that for everyone who went, why didn't anyone from ISA go? लेकिन उन लोगों को मीटिंग में नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये आप लोगों से कोई तालमेल, कोई बातें हुई थी कि हाँ चलो करते हैं, आप लोग चलो, या आप लोग नहीं जाओगे, या खुद हम चले गए? नहीं, पहली बार तो जो मीटिंग हुई थी 20 को, उसके बारे में हमें नहीं मालूम था। वो They didn't even tell them about the fucking meeting. Yeah, no. Left was fucking sidelined. This kind of proves it. Yeah, even he has more spine, yes. सेशन हो नहीं पाया था बहुत ज़्यादा केओस वगैरह की वजह से, और हमें नहीं मालूम था कि वो गए हैं जेपी नड्डा से मिलने और गए हैं। तो They literally made a big deal about Das going to meet Nadda. They literally made a big deal about Das and Ranka going to meet Nadda. What the fuck do you mean you did have no idea about that? Just say you were fucking sidelined because you fucking were. तो क्या बात होगी वो हमें नहीं मालूम था। दूसरी बार जब मीटिंग के लिए बुलाया था तो उसके पहले हमारी मीटिंग हुई थी कि क्या बात रखनी है क्या नहीं रखनी है। अब सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की भी एक अपनी होती है डिमांड कि हम इनसे मिलेंगे, इतने लोगों से मिलेंगे, तो वो सब लॉजिस्टिकल बात था। पर Okay, listen, that is not a logistical question. Drop Ranka, or best yet drop Das, and then send someone from here. God fucking damn it. जो ये बात है कि स्टेज पे नहीं बैठे या तमाम चीज़ें, मुझे तो लगता है कि अगर हम स्टेज पे बैठे तो हम सोनम वांगचुक के साथ उठ चुके होते हैं उस वक्त। और दूसरा ये कि लोगों को ये लग रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि मूवमेंट में जितना लोग आपको जानना चाहिए था आपके संग Man, these people are humble themselves too much. This is not about you, honestly. It's more important for leftists to have credit. They are not being humble. They are not being humble. This is a way to say, shit, we were sidelined, we were used, we were chewed out, and now we have to protect our fucking dignities. संघर्ष को अप्रिशिएट करना था वो नहीं हो रहा है, उससे हमारा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। हमें लगता है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए थे, एक तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग आते जाते रहते थे। Yeah. No. She's basically like, she was on a stall that everyone was coming and going. But so it is perfectly okay for her to be there and this AIS to be there. But everyone was not looking at them. They were looking forward to the fucking stage. If Isa is the one, as she has said, that managed the entire fucking protest, if Isa is the one that led the fucking protest, managed everything in the background, why the fuck they were not allowed to be on stage? And she has said it herself that they were not, because they didn't want to associate with the left, because CJP is inherently an AAP-led protest, and they basically were taken for idiots. They were literally taken for idiots. बाद में तो वहाँ पे चलिए रस्सी लग गई, उससे पहले रस्सी भी नहीं लगी थी। तो हम लोगों का खून निकल रहा है तो हम कौन सा एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ये जनता एकदम करीब से देख रही है। हमारा वेट किस तरह से गिर रहा है, वो मशीन के ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ के वो सब लोग देख रहे हैं। हम लोगों का समथिंग इतना इंटीमेट कि हम जब यूरिन टेस्ट हमको हमारा लिया जा रहा है तो हम लोग वो डब्बा लेकर के वॉशरूम जाते थे और वॉशरूम से वापस फिर आके हम देते थे उनको जो कलेक्ट करने आते थे। और ये मैं बता भी रही थी किसी को, तो हम लोग जब एक दिन ले करके आ रहे थे, पहले मुझसे पहले 2 साथी गए थे, तो मैं तीसरी इंसान थी जो वॉशरूम से ले के निकल रही थी वो डब्बा। तो लोग पीछे बात कर रहे थे कि ये लोग कर कैसे लेते हैं कि ऑन डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर किसी दिन नहीं हुआ तो क्या होगा, सरकार मानेगी नहीं क्या ये लोग बैठे। Jesus, why is this deflection going on from her? I know why this deflection is going on. This deflection is going on because no one wants to get to the point if they were sidelined or not, which sounds like they were. तो लोग हमारे यूरिन टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा जगह होता है। हमारे खून निकलता था यहाँ से, एवरी ऑल्टरनेट डे 2-3 वाइल्स लिए जाता था। तो हमारा वीडियो हमारे लोग बाद में बनाते थे, बाकी जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे वो पहले बना देते थे। देखिए कितनी तकलीफ हो रही है नेहा जी को, और हम देखते थे कि अच्छा ये इतने सारे एंगल से हमारा वीडियो बना है।
तो द फैक्ट कि हमारा संघर्ष लोगों के जहन में दर्ज है, उनके जंतर मंतर के मेमोरीज का एक अभिन्न अंग की तरह हमारा मेडिकल टेस्ट हमारे साथ बैठ Listen, I know this person. We'll talk about this person later. Everyone fucking hates her. Trust me when I say that. Everyone fucking hates her. करके फूट फूट के रोना, हमसे माफी मांगना, Not भाजपा को Neha, वोट the person, friend of a friend sent me the information about. करने के लिए हमें फूल देना, मुझे पता नहीं वो प्रोटेक्शन का धागा वादा सब बांध देना, और तमाम हमको सजेशंस देना, बोलना कि अब SIR पे अब आप करो, ये सब हो गया है एजुकेशन पे। कुछ रिटायर्ड लॉयर आए, वो अपनी कहानियाँ सुनाने लग गए पता नहीं कितने साल पहले। तो ये सब तमाम चीज़ें हुई। मेरी माँ आई जो भाजपा की सपोर्टर रही हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने बोला सबको बधाई देना, तो मुझे लगा सबके माँ बाप, अब नहीं सपोर्टर, छोड़ दिया उन्होंने। अब पता नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में उन्होंने बधाई दी, बाकी देखा जाएगा लंबी मैं, आप बातचीत। कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ। मतलब आपके फादर मदर क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी में हैं, मदर एक हाउसवाइफ है, भाई है एक मेरा छोटा जिससे मैं बहुत क्लोज हूँ। तो हम लोग मूव करते रहे हैं हर 2 साल बाद पढ़ाई के लिए, तो यही रही है हमारी ज़िंदगी ऐसे। तो अभी जो है फैमिली में क्या, फैमिली का झुकाव किधर है? Okay, I'm gonna skip this part because it's not important. People. हाँ खाना यार, वो खिलाया। लगे खाना। तो वॉशरूम ले जा रहे हैं 7-8 लोग। नेहा- तो बहुत पहले हृदय परिवर्तन तो हो चुका था। Yeah, we know she was a leftist. Her father didn't speak to her for 10 years. उस डिसएग्रीमेंट का आर्टिकुलेशन मुझे मज़ेदार बात, अरुंधति राय का नाम लिया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। हाँ कॉन्फ्लिक्ट, रॉय हों या आगा शाहिद अली हों, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। बस अरुंधति राय का नाम लिया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। हाँ कौन है, उनके लिए ज़िंदगी में राजनीति को उतारना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा आसान हो जाता है। थिएटर ग्रुप एक चलता था, ये इसको जो है CA प्रोटेस्ट ने बदल दिया, ब्रेन वॉश किया है। मैं समझ रहा हूँ, ये थिएटर ने Okay, this is getting actually pathetic. इंटरेस्टिंग एक बात है कि जिनके साथ आप बैठी थी स्टेज तो अलग था, सोनम वांगचुक के। सोनम Okay, now this is more, yeah. मैं समझ, आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि नए लोग सोचते हैं और फैमिली से कि अगेंस्ट कह सकते हैं आपकी सोच, विचारधारा, आइडियोलॉजी है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि जिनके साथ आप बैठी थी स्टेज तो अलग था, सोनम वांगचुक के। सोनम वांगचुक Yeah, he's like, oh no, but the stage was different. Like he's making fun of her in the question he's asking. That is the level that we are getting at. और उनकी वाइफ का जो इंक्लिनेशन है वो कई बार दिखा है, राइट की तरफ दिखा है। उनकी वाइफ का जो स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले आया है कि जिस तरह की उन्होंने बातें की है, हिंदुत्व की बातें की है, हिंदू राष्ट्र की बातें की है, उससे आपको लगता है? Like he's basically asking, for people who don't understand Hindi, is that like Som Wangchuk is a cuck for the RSS, and how can you sit with someone like that? Again, not to even mention the app connections, but let's go on. थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है या आपकी विचारधारा से अलग है? नहीं ऑफ कोर्स अलग है, हमारी और उनकी राजनीति में बहुत फर्क है। वी वर यूनाइटेड बाय वन एजेंडा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन उसके इतर जो उनके शायद राजनीतिक व्यूज़ हैं, सो खुद सोनम वांगचुक के हो सकते हैं या उनके पार्टनर गीतांजलि जी के हो सकते हैं, उनसे ऑफ कोर्स हमारा डिसएग्रीमेंट है। NEP Yeah, so basically she's saying that it doesn't really matter if he's a cuck for the RSS. It doesn't really matter if you have a snake in your hen coop, you still feed it. Yeah, this is why the left never wins. को भी लेकर के मैं जानती हूँ सोनम वांगचुक सपोर्टिव हैं, हम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। हमें लगता है कि अगर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन के सिस्टम में कोई एक रॉट की मेन वजह आज के समय में है तो वो NEP है। इसलिए भी हम लोग एक्चुअली बैठे थे भूख हड़ताल पे कि आप Yeah, no one ever said that. No one ever gave them the space to actually say that what they were exactly fucking against. Like, be serious. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हम आपके साथ सॉलिडारिटी में बैठे हैं, लेकिन NEP के समर्थन की आवाज़ अगर आप उठाएंगे तो उसके साथ साथ छात्रों का भी ये डिसेंट दर्ज होना चाहिए कि NEP किस तरीके से हमारे यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, और उनकी लार्जर पॉलिटिक्स से अलग अलग समय पे हमारा डिसएग्रीमेंट रहा है। हम एक लेफ़्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो लेफ़्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन
left needs to stop being so kind for real. I don't think she's being kind. Oh, actually, you're being sarcastic. Okay, I understand. This is disappointing. This is disappointing. प्रेजेंट मौजूदा राजनीति को कैसे देखता है, उसमें हिंदू राष्ट्र का जो तात्पर्य आज के समय में आ गया है कि उसका मतलब ये होगा कि बाकी और किसी के लिए जगह नहीं होगी, चाहे वो दलित हो गए, महिलाएं हो गए, मुसलमान हो गए, किसी और के लिए स्पेस नहीं होगा इस हिंदू राष्ट्र में। ये समझदारी से हम डिसएग्री करते हैं। हमारी अंबेडकर की समझदारी है और वो हिंदू राष्ट्र के प्रति जो वार्निंग देते हैं हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। हम भगत सिंह के जो एंटी कम्युनल एजेंडा है और जो वो मानते हैं कि एक डायरेक्शन में एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप नहीं चला सकता है, स्टेट के ऊपर सत्ता में नहीं रह सकता है, उससे इत्तेफाक रखते हैं। तो यही बात है। तो अब To be honest, we need a brain dead leftist IT cell to neutralize BJP brain dead IT cell. We need a propaganda machine. We don't need a brain dead leftist IT cell, because our dear leaders here are conceding to the left like every 5 seconds. Let me just let you know, they're conceding to the left every 5 seconds in this entire video. बताइए कि नेहा बोरा चुनाव लड़ेंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी? बिल्कुल, जहाँ से हमारी पार्टी हमें ये- बोलेगी हम लड़ेंगे चुनाव। ये हुई ना बात। एक बात बताइए, आप चुनाव लड़ेंगी, कहीं सोचा है कुछ सीट वीट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी बहुत समय है हमारे चुनाव लड़ने में। और 29 मतलब चुनाव लड़ना या किसी भी पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंपटीशन का हिस्सा बनना इज़ अ मीन्स टू एन एंड। जिस तरीके से सड़क का संघर्ष होता है उसी तरीके से संसद का संघर्ष होता है। Okay, I'm gonna move forward. आपसे भी लोग ये सोचते पूछते होंगे या आपके दिमाग में भी बातें चलती होंगी कि नेहा आज तो बहुत भाषण दे रही है, आपके ही जेएनयू से शहला रशीद थी। Yeah, that Shaila Rashid is someone who conceded to the right. आज कहाँ हैं, आज उनका स्टैंड क्या है, वो बहुत क्लियर है। नेहा क्या सोचती हैं इसके ऊपर? नहीं, मुझे लगता है कि आप जो राजनीति करते हैं उसके हिसाब से जो लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे या आपका समर्थन करेंगे। जिस दिन कोई भी, एंड दिस अप्लाइज फॉर एनीबडी, जिस दिन लोग खुद को जनता के संघर्षों के लिए इरेलेवेंट बना देते हैं, उस दिन वो लोग जनता के लिए इरेलेवेंट हो जाते हैं। भले ही वो सत्ता पक्ष के कितने पैर पकड़ें, नतमस्तक हो जाएं उसके सामने। तो जिस दिन मैं ये गद्दारी करूंगी उस दिन मैं इरेलेवेंट हो जाऊंगी। नेहा भी कह रही गद्दारी। हाँ, गद्दारी होगा और क्या होगा ये। She's saying if you stop talking about the people, you're betraying the people. We really need to have this conversation about conceding to the right in that same breath. काफ़ी लोगों ने ऐसा भाषण दिया है ये वाला नेहा, इस तरह के बोल्ड भाषण, हाँ। और फिर वो पलट गए हैं। नेहा के बीजेपी वाले दोस्त हैं, कोई आरएसएस वाले दोस्त हैं? हाँ, जानने वाले He's asking, do you have friends in the BJP and the RSS? हैं, बातचीत हैं। एबीवीपी के एक्टिविस्ट्स हैं जिनको जब कुछ समझ नहीं आता है तो वो बिल्कुल मैसेज करके पूछते हैं कि ये वाला तो समझ नहीं आया, नेहा दीदी आप ऐसा बोल रही थी, इसका क्या मतलब है। Why are you? She's like, she has friends in the ABVP. Why would you ever speak to them? Why would you ever speak to them? है, लोग हैं, लेकिन अब यही बात है कि कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष के प्रति कितना ज़्यादा लॉयल है उससे, और वो किस हद तक अपनी ज़िंदगी में उस नफ़रत को उतारने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स इसका एक इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, कैंपसेस में मैं जिन लोगों से बात करती हूँ, अपनी आम ज़िंदगी में जिन लोगों से बात करती हूँ, जो लोग मेरे दोस्त हैं, उन लोगों का वो देखते हैं लोग, और इस वजह से भी उनका एक्सेस, मतलब आम लोगों का एक्सेस उन तक ना पहुंचे, ये भी एक पक्के वाले responsibility दोस्त रहती नहीं है कोई? पक्के वाले तो अब परिवार वाले भाजपा वाले हैं, और कितने पक्के वाले होंगे। एक चीज चल रहा है अचानक, जब ये I don't प्रोटेस्ट even चल रहा want था, to इसी बीच translate में रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन टाइप की चीजें भी उठ रही हैं, तो आप देख रही होंगी। और आपको लेकर काफी वो है कि आपने जब डीयू में कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें ब्राह्मणवाद और इसका नारा लगा था, उसमें आपके खिलाफ भी बहुत सारे लोगों ने कहा था। इस वाले आंदोलन या इस टाइप की चीज़ों पे आप क्या सोचते हो? रिजर्वेशन के ऊपर नेहा बोरा क्या सोचती हैं? जब यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस लाए गए थे, एक अधपके अधकच्चे से गाइडलाइंस लाए गए सरकार द्वारा, और उसके बाद
5 दिन के 5 लोगों के प्रोटेस्ट के बाद कोर्ट चला गया वो, और कोर्ट ने बोला कि इतने बड़ा डिसेंट आ रहा है तो हम लोग कैसे नाराज़ कर दें, और पुख्ता नहीं है इसके डेफिनेशंस, तो हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद पूरे देश भर में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में का मैं हिस्सा थी। आयशा मुझे लगता है उन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से था जो इस बात को सड़कों पे उतार रहा था कि नहीं, हमारे कैंपसेस में जाति के आधार पे भेदभाव और हिंसा बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, और अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो कैंपसेस जो एक तरीके से अपना गेट बंद कर देते थे समाज के हाशिए से आने वाले जाति के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, वो पूरा प्रोसेस, वो ट्रेडिशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आरक्षण को लेकर के नहीं, मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के और हिंसा को लेकर के पुख्ता कानून बने, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि जो आरक्षण का वादा सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से चिन्हित करते हुए आरक्षण मिलता है, ना सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट। Yeah, I know. I'm just literally, I don't want to even translate most of this. First of all, they're talking about like the reservation Hatao Andolan, which is absolute bullshit. Secondly, they're just yapping about random shit at this point. Oh, Jesus. It's very bad. It is absolutely horrendous at this point. Like, I did not know what I was getting into when I started this video. Actually, I just saw this video. I was like, okay, this is exactly what I was talking about, exactly what I was always talking about, that the left has conceded to the right. The left has given it all of the space that it should have to the right, to CJP, to AAP, but it is just worse because they know at this point that they have been sidelined. They know they have been sidelined. It is very hard to not think like, are these guys so dense that they don't realize they have been sidelined? Like, I am in absolute disbelief. How can you, as someone who is part of all of this, who has seen this from the inside out, not think that you have been fucking sidelined? Why would you be in so support of the people who have sidelined you, who have left you by the wayside, who have conceded to the right themselves because they are right, and now you are conceding to the right? And it's not even like they're conceding to the right as in like, oh, they're conceding to something like the Congress. No. They're conceding to the right even in the Indian sense of this. Not even in like the Marxist sense, but also the Indian sense. जॉब्स में इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स निकलती हैं, अभी भी SC ST OBC सीट्स खाली जाती हैं। जो प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त पढ़ा रहे हैं, उसमें SC ST OBC सीट्स आप देखिए लगभग खाली हैं। तो ना सिर्फ आरक्षण ढंग से इम्प्लीमेंट हो, बल्कि आरक्षण का जो एक कैप है 50% का, कास्ट सेंसस अलग अलग जगह पे करवाया जाए, नेशन वाइड कास्ट सेंसस हो, और उसके बेसिस पे जो 50% की सीलिंग लगा दी गई है लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए, वो सीलिंग भी ध्वस्त हो। ये तो हमारा मानना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों ने जेनजी ने ले लिया। जेनजी के अगले निशाने पे कौन है? जेनजी के निशाने पे तो पूरा कैबिनेट है। She's like, oh, the Gen Zs is aiming for the entire cabinet to resign. Okay. शाह है फिलहाल सबसे ज़्यादा तीखे निशाने पे। वो व्यक्ति जो स्टार्टिंग में 20 तारीख को पेलेट गन्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर लेते हैं, मुझे नहीं लगता हम 1 मिनट भी 1 सेकंड भी मानेंगे कि अमित शाह को के एक्सप्लिसिट परमिशन और ऑर्डर के बिना सेंट्रल दिल्ली में पेलेट्स फायर हुए। दिस इज नॉट पॉसिबल। So she is saying that she knows and she believes rather that without Amit Shah's knowledge, the pellet guns couldn't have been fired, and if they were, then he should resign anyway. Because come on, again, that's Congress's talking points, but that later. Sure, the point still remains. Why aren't the CJP, all of the friends that you have, calling the protest?
possible and we do not believe in it and we don't accept it. अमित शाह इस देश में सेंट्रल दिल्ली में आम जनता, आम प्रोटेस्टर्स को हैंडल करने के लिए पेलेट गन्स के इस्तेमाल को आम बना देना चाहते हैं, और इस वजह से जिस स्टेट का वो हिस्सा है वो एक टेररिस्ट स्टेट है, वो एक क्रिमिनल स्टेट है, और उसमें उस क्रिमिनल स्टेट में जो व्यक्ति निर्देश देगा कि पेलेट गन्स का इस्तेमाल करो, जिसके बाद आंख की रोशनी एक स्टूडेंट की परमानेंटली चली गई है, हियरिंग डैमेज हो गया है, स्टूडेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं. It's actually worse. It's actually very fucking worse. The reason why it's worse is because they're trying to create a situation like Godhra, when right-wing goons, Hindutva Wadis, the Bajrang Dals, the VHPs are going out of their way to harass people, kick people, fight people. They're targeting them individually. This is exactly what happened in Godhra. They're trying to create that situation in Delhi. It is much worse. उन सब लोगों के जिंदगी को बर्बाद करने का, परमानेंटली डैमेज करने की जिम्मेदारी अमित शाह उठाएंगे, और उनके इस्तीफे की मांग सबसे पहले उठेगी. Anyway, fucking hell, this is... Yeah, I'm too damn depressed at this point. Like, what the fuck was this? Like, what the fuck was this? We are like an hour and 40 minutes in. We are an hour and 40 minutes in, and this is the video that comes fucking up. And like, yeah, the left is fucking sidelined. It has always been fucking sidelined. What did these people expect?